Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you for the confirmation. Okay. Now, uh, the thing is, we started with, again, we left out basically. We started with some of the charts, which are basically ribbon. Then we completed with waterfall also. Then we understand the funnel chart also. Then we were at scatter plot where we started with basic information. Now we just created a scatter plot where we understood the prime requirement, the primary requirement of a scatter plot to be created, or for what a primary reason scatter plot should be created. Then its secondary purpose also somewhat we have covered it. There, you should also know that this value over here represents for any data which you will provide with us. That can be categorical data or any data. Okay, now as and have value, value means a numerical data. For x-axis also you will require a numerical data. For y-axis also you will require a numerical data. This both axis has to be a numerical data. In that, if you want to break it down further, you have legend option, and obviously there's also something called size. This size option also has an privilege where you can analyze a data, where you can manage the perspective based on how the size of a bubble varies as per your value or as per your uh, data which has been provided. Here, we have understood that this data is consisting of profit as a x-axis and sales as a y-axis, where we are discussing or we are understanding about what relation do have, isn't it? Do they have between them? There we have bifurcated it based on category, where you can see those are separated by 3 categories. Then we also have added one parameter, or let's say one another feature, which is discount. Considering that there are some losses, even though there are high sales, but there are still losses over there. What could be the reason? To identify that, we have concluded that yes, there is one more parameter or feature which is influencing that thing, and that is a discount, which we have added in the size factor, isn't it? Where based on that, we did understood that wherever we have given high amount of discount, because discount over here or the size of this bubble is represented by how the value is. Means if you can see if the bubble size is smaller, that means the discount is less. If the bubble size is bigger, that means the discount is given as heavy over there. Heavy discount has been implied over there. So you can see that wherever there is a high discount, there are losses. Wherever there is low discounts, there are high profits. This means that there is a discount issue which has been implied towards customer. Now, though we can see that it's not only about, let's say, one specific category. Over all the categories, overall 3 categories are there. So overall the categories, we can see there are discount issue. Now, the thing is we need to identify. So to identify over here, that would be a bit difficult issue. Here. Now, what we can do is that, let's say, if instead of carrying out this category, okay, let's say if I remove this and from orders table, if I drag and drop over here subcategory, there could be a huge list. There is a huge list, though it is specifying to which particular things, or let's say to which particular specific product, or let's say specific sub product has been carried out. So we can say that in subcategory there's a binder which is having a specific color. In subcategory machines, there are this blue colors. In tables, furnitures, we have this. So there we can specify this. This is one of a method. The other method is, again, if I have to reduce this data, and let's say if I use bar chart, can use any of them. Yeah, cluster, that would be better. Then I'll put simply subcategory based on sales, and then we also break it down to we'll also break it down to profit. Where is profit? MNOPQ. According to the P, it is there.
Yeah. Here we can also provide the same information, isn't it? Where you can see that this line 0.0 m million is referring to exact reference or a particular pane where it is differentiating profit towards right side and losses towards left side. Isn't it? This is 0, 0. What is this about? This is sum of sales and profit. This data over here is separated bookmarks. If you take an example, if you take a bookmarks as an example, you can see that bookmark as a sales has its own different column, and bookmarks as a profit has its own different column, which is darker one refining to profit, and the lighter one which is defining to sales. So we can separate it. So we can see that specific sub-products which are responsible for losses are tables, bookcases, and supplies. Appliances, bookcases are supplies. सप्लाई देखिए, देखो यहाँ पे bookcases हैं और tables. These are the factor. Now look over there. This is bookcase, same color. This is tables. Machines are also there, but why is it not showing? That could be a very small amount of loss would be there. Minus 3,000. 100 is also less. Okay, total quantity would be less as compared to that. That might be a reason that has been not shown over here as an machines. If we take over machines here. See, one thing that you should know is that in scatter plot, we can understand, or we can, let's say, evaluate that machine is also one of a factor because it is shown over left side, isn't it? There were profit from 0, which is showing on the left side as a loss and right side as a profit. There are some products which are mentioned as losses, which are giving losses to us. Though there is a machine in that, specifically about machine, you can see that. But if you see overall, there is no loss over here. Now, what would be the reason? The reason is very simple. Over here we are adding, isn't it? हम क्या कर रहे हैं? जैसे सेल्स की हम क्या करते हैं? सेल्स के वैल्यू को हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं. लेट्स से टेक्नोलॉजी कैटेगरी सब छोड़ के अभी हम सब प्रोडक्ट में डायरेक्ट आए तो हम मशीन्स को कैलकुलेट करेंगे, है ना? मशीन्स के पूरे हम सेल्स को कैलकुलेट करेंगे. मशीन्स का जो भी आउटपुट आएगा उसका प्रॉफिट सेल जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा. ओके ना, जब हम बात करते हैं ये प्रॉफिट के बारे में, अगेन प्रॉफिट को भी क्या होगा, उस वैल्यू को हम करेंगे बाइफरकेट मशीन्स केस में. बाइफरकेट मतलब ब्रेक करेंगे मशीन्स में. जब आप कहीं कहीं रीजन्स में स्पेसिफिकली किसी रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, किसी कंट्री में, या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफाइड एरिया में लॉस होता है, जैसे कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, ऐसे आपको फेस करना पड़ता है, होता है कहीं लॉस. तो होता क्या है, ओवरऑल ओवरऑल जब आप इसका ऐड करते हो, पॉजिटिव वैल्यू होती है 100 और नेगेटिव वैल्यू होता है 50. तो होता क्या है, दो देयर इज अ लॉस ओवर हियर, बट व्हेनेवर यू विल समराइज इट, तो आंसर क्या होगा, इट विल बी 50 व्हिच इज पॉजिटिव. दो देयर आर लॉसेस बट ओवरऑल इट विल बी पॉजिटिव. तो होता क्या है कि आपको इस फैक्टर में लॉस नहीं दिखता है, दो देयर आर सम स्पेसिफिक प्लेसेस वेयर इट इज बीन शोन कि वो प्रोडक्ट लॉस दे रहा है, बट ओवरऑल आप देखोगे कि किसी ना किसी तरीके से मशीन बच जा रहा है. इज इट ओके, क्लियर है? गाइस क्लियर है ना? यस सर. Yes, sir. कीप इट ओवर देयर, वैसे रख देते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ पाई चार्ट बोलो या डोनट चार्ट बोलो, दोनों का लॉजिक सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. उसके इनपुट्स भी जो भी आप देखोगे वो भी बहुत सेम है. इफ यू लुक ओवर हियर दिस पॉइंट्स, legend, value, details, and tool tips, you will see that pie chart and this donut chart has the same requirement. दोनों की दोनों सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है. सिर्फ इतना है कि डिफरेंस पाई चार्ट के अंदर में आप ऐसे होल कर दोगे तो वो हो जाएगा डोनट चार्ट, दैट्स ऑल, नथिंग अदर देन दैट.
सो एनी हाउ आपको कौन सा दोनों में से कोई भी अगर आपको लगता है शो केस करना है, अगर आपको यूज करना है कर सकते हैं। अल्टीमेट इसका रीजन क्या है यूज करने का, फिर रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब आपको ओवरऑल टोटल में से किसी का कुछ प्रोपोर्शन दिखाना है तो। ओके, जैसे हम क्या करते हैं जब भी हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं, है ना, ऐसे तो कॉलम चार्ट क्यों यूज करते हैं, बेसिकली अगर हम लेट से पकड़ लो कि हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी में हो सकता है कि ए का वैल्यू लेट से यहाँ पे 100 है, बी का वैल्यू लेट से यहाँ पे 200 है, सी का वैल्यू यहाँ पे लेट से 80 है। तो हमने क्या किया, कैटेगरी एक कॉलम के एक फीचर के अंदर में हमने कितने तीन क्लासेस को देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, हम उनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ए बी सी। तो जब आपको एक कॉलम के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के कंपैरिजन करने होते हैं, ओके, बेस्ड ऑन किस पे, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यूज, है ना, बेस्ड ऑन क्या है उसके वैल्यूज के बेसिस में, ऐसे जो आपको कंपेयर करना होता है कि भाई किसका परफॉर्मेंस कितना है, कैसा है परफॉर्मेंस, है ना, ए का कितना अच्छा चल रहा है, बी का कितना अच्छा चल रहा है, सी का किससे कंपेयर कर, बेस्ड ऑन दैट तब कॉलम चार्ट करते हो। वही चीज अगर आपको ओवर अ पीरियड, एक सर्टन पीरियड के बाद में आपको, और या फिर जैसे सर्टन पीरियड में आपको चेक करना है कि ए का परफॉर्मेंस क्या है, बी का कैसा है, सी का कैसा है, यू कैन सी दैट इट बी लाइक दिस लाइन चार्ट, ये हो सकता है ऐसे करके। ओके, ऐसे हो सकता है जो भी हो, ये तो छोटा होना चाहिए like this. Okay, so this shows that over a period, आप एक्स एक्सिस में आते रहोगे तो ओवर अ पीरियड जहां पे ट्रेंड होता है, ओवर अ ट्रेंड, ओवर अ पीरियड तो लाइन चार्ट बेटर होता है। वैसे ही पाई चार्ट हम कब यूज करते हैं, जब मुझे इस कैटेगरी कॉलम के अंदर में इन तीनों का प्रोपोर्शन दिखाना है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर ये मुझे शोकेस करना है बेस्ड ऑन परसेंटेजेस, तब मैं इसे यूज करता हूं। Okay, then it becomes logical. Why? Because you can use stacked column chart, 100% stacked column chart also. There is also a particular calculation. But the thing is, when you compare this, it takes a small area. It takes a small area, and obviously, we'll compare it. It will be a very easy for understanding. It makes very easy for understanding also. And again, make sure that you should not, let's say, use each and every let's say a minute partition. You should not go through a huge minute partition. You should not go over there, because if you're leading through a huge minute, or let's say very minute partition, that information will not give any specific details. Then you have to use filters, then you have to do slicers, then it will be useful. उसका एग्जांपल क्या मैं बताता हूँ, देखो मैं जब सेल, अभी मैं इस चार्ट में यूज कर रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, सेम इसके इनपुट्स है। अभी मैं सेल्स की बात करता हूँ, लेट्स से सेल्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज, you can see that we have these details where it is seen 836, 742 and 790, ये आपके डिटेल्स आपको मिल चुके हैं, जहां पे क्या आपको प्रोपोर्शन वाइज ये है 100%। अब इस 100% में जो आपकी तीन कैटेगरी है उसके कौन से किसके कितने कंट्रीब्यूशन है जो आप देखोगे, तो भाई ये ए का है, टेक्नोलॉजी जिसे रेफर करते हैं टेक का, ये है, फिर क्या है फर्नीचर, और फिर है ऑफिस सप्लाईज। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं कि भाई ये फर्नीचर है और ये ऑफिस सप्लाईज, ऐसा क्यों नहीं, लेट मी शो। द थिंग इज, जैसे यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ नंबर दिया, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज क्यों जा रहे हैं व्हाई वी नॉट मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। द थिंग इज, पाई चार्ट इन पावर बीआई बेसिकली, अगर आप उसको इस तरह से ऐसे ये करोगे, ब्रेक करोगे इन एक्सिस वाइज, ऐसे दे दोगे उसे, तो आपको बताता हूँ कि ये देखो ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट 90 डिग्री, यहाँ से राइट साइड जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज मूव करते जाओगे, यहाँ से राइट साइड जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे इस 90 डिग्री के हिसाब से, तो आपको पहला कभी भी फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा, जो भी आपके लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट आता है, इट विल ऑलवेज बी हियर। अभी के लिए क्या है, सेल्स के हिसाब से उन्होंने क्या है, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू, क्योंकि सेल्स की बात करें ना, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का है, फिर फर्नीचर और फिर सप्लाई का, तो सेल्स का सॉर्टिंग है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले टेक्नोलॉजी का, तो राइट साइड में पहला जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट विल बी टेक्नोलॉजी होंगी। अब नेक्स्ट जब आएगा तो उसके बाद में फर्नीचर आएगा, फिर ऑफिस सप्लाई, इस तरह से नीचे नीचे क्लॉकवाइज होता है। ये क्यों बताने की जरूरत है, नाउ द रीजन इज
इफ यू वांट टू शो दिस इन अ डिफरेंट वे, और इसे इसको मुझे चेंज करना है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा नीचे लेके जाना है, इसका एंगल चेंज करना है, आप कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल से मैं चेंज करूंगा तो कौन सा वैल्यू कहां पे जाएगा या कौन सा प्रोडक्ट कहां पे जाएगा. ओके, सो इफ यू वांट टू रोटेट दिस, यू कैन डू दैट. ओवर हियर इन द फॉर्मेट ऑप्शन यू विल सी रोटेशन. देखो मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ, ये देखो रोटेट हो गया, बट कहां से हुआ? अच्छा मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ ना ताकि बेटर रहेगा. अभी 90 कर देता हूं मैं पहले, एंटर. या करेक्ट हो गया ना. ये देखो पहले यहाँ पे 90 था, ये 90 था, यहां से नीचे 90 आया, मतलब क्या हुआ? ये 90 और यहाँ से 90 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 90 आ गया. देखो 90 डिग्री 90 डिग्री. ओके, दिस हाउ इट मूव्स. अगर आप करते रहोगे तो अगेन इट विल रोटेट लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये रोटेट होता रहेगा. यस, समवन वाज हैविंग सम क्वेरी, पूछ सकते हैं, बोलिए. हॅलो सर, थोडं नेटवर्क इश्यू झालं होतं. ते काय 90 ते पुन्हा रिपीट करता का? रोटेशन आहे, रोटेशन, हा रोटेशन आहे. हां, तेच मला समजलं, म्हणजे पूर्ण नेटवर्कच गेलं होतं माझं. त्यामुळे ते रिपीट मला ठीक आहे, काही नाही, ते व्हिडिओ मध्ये रेकॉर्डिंग मध्ये येऊन जाईल. ठीक आहे, एकदा ठीक आहे. रिपीट होता होऊन जाते चांगलं. ठीक. ओके, तर हे रोटेशनचं ऑप्शन तुम्हाला तिथं भेटून जाईल. दुसरा सेम ऑप्शन विथ दिस डेनोट चार्ट, डोनेट चार्ट ऑल्सो एंड पाई चार्ट ऑल्सो, दोनों इसमें सेम रहेगा. अगेन अब ये जो वैल्यू आपने यूज की है इसमें डिटेल्स, टूल टिप्स, सब इंफॉर्मेशन सेम है. डिटेल्स करोगे तो डिटेल्स में ब्रेक होगा. अब डिटेल्स मतलब क्या? स्मॉल मल्टीपल्स तो आपने देख लिया, डिटेल्स मतलब क्या है? लेट्स से मैं इसी चार्ट को रखते हुए, ओके, कीपिंग दिस चेंजेस और लेट्स से कीपिंग दिस चार्ट एज इट इज विदाउट डूइंग एनी फर्दर बाइफर्केशन और विदाउट लेट्स से फर्दर ब्रेकिंग डाउन द डिटेल्स, कीपिंग दिस एज एन बैकग्राउंड, ऐसे मुझे बैकग्राउंड में रखना है. जो भी चेंजेस देखने इसके ऊपर देखना है. मतलब मुझे अगर ये जानना है कि भाई टेक्नोलॉजी है, अगर ये टेक्नोलॉजी है, मैं इसको रीसेट भी कर, अच्छा इसको रीसेट भी कर सकते हो आप. जैसे अगर फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मैं भूल गया कि मैंने कौन सा एंगल में किया था, या मैन्युअली अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो भूल जाते हैं ना कभी कभी. तो फॉर्मेट में आना है, जो कुछ भी आप चेंजेस करते हो, जैसे रोटेशन है, हर समय देखना लास्ट में ना ऐसे होता है, देखो रीसेट टू डिफॉल्ट, ये आपको हर एक चेंज के जो बॉक्स है उसके नीचे आपको मिलेगा. क्लिक कर दो, रीसेट हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स से ये आपका विजुअल है. अब मुझे क्या करना है कि टेक्नोलॉजी में मेरे बहुत सारे सब प्रोडक्ट्स है ना, सब प्रोडक्ट्स है या फिर क्या है, सब कैटेगरी है, या तो फिर क्या है कि भाई उसमें मुझे ये चेक करना है कि टेक्नोलॉजी का अगर मैं सेल करता हूं तो कौन से रीजन में कितना सेल आउट होता है, ये मुझे चेक करना है. तो टेक्नोलॉजी के अंदर में ही रहेगा वो. सो इफ आई पुट दिस रीजन, अगेन आई कैन पुट बिलो देयर ऑल्सो. उससे क्या होगा, अगर मैं इसे ड्रिल डाउन करूंगा तो टेक्नोलॉजी के ब्रेक में मिलेगा. फर्दर अगर मैं हायरार्किकल करता हूं तो हायरार्की के साथ में मुझे मिलेगा, वो भी ऑप्शन है. लेकिन मुझे बैकग्राउंड में ये रखते हुए अगर मुझे इसका विजुअल करना है, कीपिंग आई ओवर देयर, तो भी एक ऑप्शन है मेरे पास में. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग रीजन एट दिस लेजेंड, मैं इस रीजन को उठा के कर देता हूं यहाँ पे डिटेल्स में. क्या करता हूं, वहां से उठा के डिटेल्स में. डिटेल्स क्या करता है, जैसे हम पिज्जा का टुकड़ा करते हैं ना, जैसे छोटे छोटे स्लाइसेस में, तो स्लाइसेस कर देता है. बेस्ड ऑन व्हाट दिस स्लाइसेस आर प्रिपेयर्ड और लेट्स से बीन डन बेस्ड ऑन रीजंस. ओके, नाउ आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ से उठा के, देखो मेरा कर्सर यहाँ पे रखता हूँ. देखो ये कौन सा है, सेंट्रल है, ये कौन सा है, ईस्ट है, ये कौन सा है, साउथ है, ये कौन सा है, वेस्ट है. कौन सा बेसिस में हो, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, ईस्ट, सेंटर, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ई, सी, ई, एस एंड डब्ल्यू, इस तरह से वो हर एक को आपको बाइफरकेट करके दे देता है. सो स्लाइसेस आर बेस्ड ऑन डिटेल्स. सो दिस डिटेल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे देखो आपको पता है टोटल आपका कितना था, समथिंग 33 कुछ तो भी था परसेंटेज. क्या हो गया, ब्रेक करके 7% इसका है, 11% इसका है, 6% इसका है और 10% इसका है. परसेंट में आपको और भी डिटेल्स आ गए. आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे वैल्यू नहीं देखना है, आई नीड टू चेंज दोज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, आप चेंज कर सकते हो. हियर आपके पास में देखो डिटेल लेबल से, जो आपको डिटेल लेबल में आउटसाइड चाहिए आउटसाइड कर सकते हो, इनसाइड चाहिए आपको इनसाइड भी कर सकते हो. अगेन रीड करने के लिए अगर मुश्किल होता है तो प्रेफर आउटसाइड कर सकते हैं. प्रेफर आउटसाइड, प्रेफर इनसाइड, जो भी है आपको दोनों में सेम ऑप्शन वही है. प्रेफर आउटसाइड, प्रेफर इनसाइड, वही ऑप्शन सेम लाइक दिस. ओके, ऐसे करके. देन लेबल कंटेंट में क्या चाहिए आपको, लेबल है नहीं कंटेंट, तो ये लेबल से. अब लेबल में क्या देखो,
डेटा वैल्यू मतलब टोटल जो सेल हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये वैल्यू भी है और उसका परसेंटेज भी है. सो यू हैव डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज बोथ. डू यू नीड दिस? इफ यू नीड दिस देन, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कैटेगरी भी चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए, तो वो भी ले सकते हो. कैटेगरी का नाम चाहिए, डेटा वैल्यू चाहिए, वो भी मिलेगा. परसेंटेज ऑफ टोटल सिर्फ चाहिए, वो मिलेगा. डेटा वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए सिर्फ, तो वो भी मिलेगा. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, सिर्फ कैटेगरी चाहिए तो ऐसे करके आपको ब्रांड, या फिर पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन चाहिए. पूरे के पूरे मतलब क्या भाई, कौन सा कैटेगरी का है, उसमें कौन सा रीजन इन्वॉल्व है, कितना परसेंट है उसका, और कितना वैल्यू है, वो भी अगेन दिखाने में अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इट वुड बी वेरी, लेट्स से ऐसे देखो, साउथ भी आ गया, वैल्यू भी आ गया, ये भी आ गया. और ये हाँ ऑब्वियसली तो पहले कलर में डिफाइंड है, तो ये चीजें आ जाएंगी. तो रीड करने में ना बहुत डिफिकल्ट होता है. आइदर की, अच्छा ये भी ध्यान रखना प्रेजेंटेशन करते समय, या तो वैल्यू दिखाओ या तो परसेंटेज, दोनों नहीं दिखाना है. दोनों दिखाने की जरूरत नहीं होती है, फिर दोनों एक साथ नहीं दिखाते, याद रखिएगा. ओके. सो इट्स बेटर कि या तो क्या करो, ऐसा वैल्यू ये दिखाओ साउथ का इतना है ऐसे, या तो अदरवाइज आप क्या करो परसेंट टू टोटल, या इस तरह से, हाँ साउथ में कितना परसेंट है लाइक दैट, वो होता है स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग. ये ध्यान रखना. सो यू कैन डू दिस ऑल्सो. सेम गोज विथ डोनट चार्ट ऑल्सो. उसका भी प्रोसेस सेम है, उसमें भी कोई अलग नहीं है. ओके. सो सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट आप यहाँ पे चार्ट पे कर लो, इसको फॉर्मेट कर दो, यहाँ पे ऐसे पेंट कर दो. और फॉर्मेट करने से आपको क्या करना है, सेल सेलेक्ट करना है, कैटेगरी करना है, और रीजन पुट कर दो डिटेल्स में. ये लास्ट सेम फॉर्मेट. उसको चेंज करना है आपको, रीजन की जगह सेगमेंट करना है, सेगमेंट भी डिटेल में पुट करके देख सकते हो. फॉर्मेट तो सेम आ जाएगा. ओके. देखो आपको दोनों में ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कैटेगरी भी मिलता है और उसके परसेंटेज भी मिलती है. सो इस तरह से आपको करना है तो कर सकते हैं यूज. अब आते हैं ट्री मैप पे. अब ट्री मैप क्या है? ओके, नाउ फॉर द ट्री मैप, ट्री मैप मतलब क्या है, देखो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा को बाइफरकेट करना है, बाइफरकेट मतलब ब्रेक करना है इन स्मॉल स्मॉल डिटेल्स. ओके, इन वेरी स्मॉल डिटेल्स यू कैन यूज दिस ट्री मैप. ट्री मैप बेसिकली लॉजिक क्या है इसका, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के रूट से, है ना, मतलब क्या है, पहले होता है रूट, ये पेड़ का नीचे ग्राउंड है, पकड़ लो ये रूट है उस पेड़ का. ओके. सो दिस विल बी एक्टिंग एज योर इनफीड. इनफीड, इनफीड मतलब किस चीज का आप पहले फीड करने वाला, वो इनफीड आप दे दो यहाँ पे. उसके बाद में फिर यहाँ से क्या होता है, स्टेम, है ना, स्टेम ऊपर बढ़ेगा. विद दैट स्टेम देन देयर विल बी ब्रांचेस. ओके, दिस विल बी लाइक योर ब्रांचेस, एंड देन देयर विल बी लीफ लाइक दिस, यू विल हैव दोस लीव्स. बेसिकली क्या है, ऐसे मल्टीपल लीफ होंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेड़ दिखेगा. सो कंसिडरिंग दैट, उन्होंने क्या किया है, यूजिंग दिस लॉजिक, मैं ऐसा नहीं कर कि दिखेगा, यूजिंग दिस लॉजिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया भाई, जो पहले आप इनपुट दोगे वो मैं कंसिडर ऐसे करूंगा, और रेफरेंस विद दैट मैं आगे ब्रेक करते जाऊंगा. मैं आगे क्या करूंगा उसे, स्टेम, स्टेम से आगे ब्रांचेस, ब्रांचेस से आगे लीव्स, ऐसे उसको ब्रेक करते जाऊंगा. अब ये कैसे वर्क करता है देखो, ट्री मैप. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्स, ये हो गया क्या आपका इनफीड वैल्यू. सॉरी, सेलेक्ट नहीं किया था मैंने चार्ट को, चार्ट को सेलेक्ट करके रखिएगा और फिर इनपुट दीजिएगा. सेल्स दे दिया, यहाँ पे ये आ गया सम ऑफ सेल्स. ये एक ही वैल्यू है जो अभी पूरा सिर्फ एक ही आपको दिख रहा है, 1 and 1 वैल्यू वो है ब्लू कलर का. अब मैं क्या करता हूं, देखो कैटेगरी डिटेल्स, मेरे पास दो चीजें, क्या है, कैटेगरी डिटेल्स. डिटेल्स तो आपको पता है क्या होता है, ब्रेक होता है, बट पहले मैं कैटेगरी में आता हूँ. आई चूज आई चूज द कैटेगरी ऑप्शन. देखो कैटेगरी में आ गया, तीनों कैटेगरी. अब ये तीनों कैटेगरी ऐसे क्यों हुए, ऐसे डिजाइन में क्यों आए, क्यों ऑफिस सप्लाई यहाँ पे नहीं है, मैं बताता हूँ. सी, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया, फर्स्ट एरिया, दिस एरिया इज द मैक्सिमम एरिया विच इज कवरिंग इन योर स्क्वायर, और लेट्स से इन योर रेक्टेंगल, और जो भी आपका एरिया यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला ये टेक्नोलॉजी है, बिकॉज अगेन द सेल्स हैज द मोस्ट ओवर हियर. देन कम्स द फर्नीचर एंड देन कम्स द ऑफिस सप्लाई. ये मुझे कैसे पता चला, द थिंग इज फ्रॉम दिस डायगोनल पॉइंट, इसका कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ, इस डायगोनल पॉइंट से आप देखोगे, इस डायगोनल पॉइंट से, ये पॉइंट से, कॉर्नर से, तो जैसे जैसे आप इस कॉर्नर पे बढ़ते जाओगे, और ये हमेशा इसी तरह से रीड करना, इस कॉर्नर से इस राइट साइड कॉर्नर की तरफ नीचे नीचे आओगे आप, तो आपको पता चलेगा राइट साइड और नीचे तरफ दोनों तरफ वैल्यू घटते जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कॉर्नर में 100 वैल्यू है, तो जैसे नीचे नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 50, इस तरह से ऐसे ऐसे घटती जाती है. ओके, ये हमेशा ध्यान रखना. सो फ्रॉम लेफ्ट
टू डाउनवर्ड्स योर वैल्यू में डिफर। अगेन क्या यही प्रोसेस है? नहीं, दूसरा भी मेथड है, आप दूसरा भी दिखा सकते हो, लेआउट में होता है अलग अलग, वो भी कर सकते हैं, हम उस पे आएंगे, बट बाय डिफॉल्ट ये चीजें यहाँ पे होती है। ओके, जैसे लेआउट, अब लेआउट में क्या है, ये स्क्वायरिफाइड, मैं इसको चेंज करता हूँ बाइनरी, ये इस तरह से बाइनरी हो जाएगा। देखो सिंगल सिंगल हर एक का अलग अलग उसने कॉलम दे दिया, सबसे ज्यादा साइज, सबसे कम छोटा ऐसा साइज। देन यू कैन यूज अल्टरनेटिव कॉलम रोज जो भी है, कॉलम रोज, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, या लाइक दिस, ये तीन दो चीज आपके पास में। अभी लॉजिकली क्या है देखो, आप देख सकते हो, फ्रॉम हियर टू हियर इफ यू मूव towards downward and towards right side, value will get reduced. If you want to see values, just turn on the labels. You can see that technology has around 8,36,000 as a value. Here you have 7,42,000 and here you have 7,90,000. So obviously this direction, from this direction you can see the values are reducing towards this and towards this side also. Further, if you want more example, what we can do is that we can simply put this subcategory from here into category, मतलब कैटेगरी बाद में भी सब कैटेगरी पे आ जाएगा, तो हम ड्रिल डाउन कर देते हैं लाइक दिस। देखो ऑब्जर्व करो, if you are moving from here to downwards at this scenario, you will see that at this direction you'll see that this is 3,30,000 यहाँ पे वैल्यू है। नीचे आओ, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, 328, यहाँ से नीचे आओ और 223, यहाँ से राइट साइड जाओ 206, और राइट जाओ और कम होता जाएगा, लाइक दैट, और कम होते जाएगा। तो इस तरह से नीचे नीचे कम 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 होते होते जाता है ना। लास्ट में एक छोटा सा एरिया ऐसा आता है जहां पे वैल्यू फिट नहीं हो पाती, लेबल नहीं हो पाता है, तो वो थोड़ा ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे, अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स विल बी हाईएस्ट एट दिस पोर्शन एंड सेल्स विल बी लोएस्ट एट दिस पोर्शन, इट विल रिड्यूस इन दिस वे। दिस इज हाउ द डेटा इज बीन बाइफरकेटेड। नाउ एक ऊपर करके मैं हायरार्किकल इसको डाउन करता हूं। ओके, तो देखो this makes much more sense. The earlier one was simply down, drill down. Now here we have hierarchical drill down. Okay, टेक्नोलॉजी का फोन है, फर्नीचर का चेयर है, ऑफिस सप्लाईज का स्टोरेज है। ओके, सो इट बिकम्स इजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज हाउ ट्री मैप वर्क्स। अगेन हमारे पास में, अच्छा मैप भी है हमारे पास में। आप मैप में ना देखो, तीन चीजें आपके पास में। ओके, मैप में मैप है, फील्ड मैप है और शेप मैप है। आप तीनों में डिफरेंस देखोगे, I'll show you with reference of image, map versus field map versus shape map in Power BI. Images, please. Yeah. If you see over here, this image which is been shown over here are called map. ये कौन सा है? मैप। मैप मतलब क्या? जहां कहीं भी, ये जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में है ना, हमारे भी इसमें भी यूएस में हम वो भी करने वाले हैं। तो यूएस में देखोगे आपको इस तरह से पिन पॉइंट, कौन से आपके स्टेट्स हैं, आपके ऐसे पिन पॉइंट करके मार्क आ जाते हैं। ओके, जे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में देखोगे तो डिफरेंस आ जाता है। अफ्रीका में कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा जर्मनी साइड में वगैरह, तो यस देयर आर सम ऑफ दिस, इटली वगैरह, तो वहां पे कुछ है तो आ जाएगा। बेसिकली क्या है, जो भी आप नाम बताते हो, स्टेट, कंट्री या पर्टिकुलर सिटी का नाम, वो वहां पे क्या पिन पॉइंट आपको मार्क करके देता है। This is because there is in behind in a background scene you will see there's one engine or let's say there's one component, Power BI का component है, वो कौन सा है? Power Map. Power Map is one of a component which is responsible for this particular act or this particular properties, this feature, that it specifically goes over that city, that state, that particular region, not region, ठीक है, region भी कह सकते हैं, or that particular country, and marks it and it goes towards your browser. वो क्या करता है, आपके यहाँ से ब्राउजर में जाता है। क्योंकि देखो सिर्फ नाम देने से तो आएगा नहीं, करता क्या है, विद गिवन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ना, सिटी मतलब क्या, एक आइडेंटिटी है, स्पेसिफिक नाम है उसका, उसका कुछ नाम ये है, स्पेसिफाइड है, वो सेव्ड है ना।
मतलब ऐसे कुछ भी नाम नहीं है वो. इट हैज एन इम्पोर्टेंस, इट हैज सम इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन इंटरनेट एंड एवरीथिंग. इट हैज स्पेसिफिक नेम ओवर देयर. तो उस सिटी का नाम आपने देते ही क्या होता है, वो ब्राउजर पे जाता है आपके, वो क्रोम हो सकता है आपका, एज हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कोई भी है ब्राउजर में जाता है. उसके बाद में क्या करता है, ब्राउजर में जाके उसको लोकेट करता है, और वो क्या करता है आपके पावर बीआई के आईडी से थ्रू जाके, आपके पावर बीआई के सर्वर पे जाके वो क्या करता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को वो क्या करता है, अक्वायर करता है. विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फाउंड, वो क्या करता है, पावर बीआई मैप को देता है, और वो एग्जैक्टली आपको इसे लोकेट करके देता है कहाँ पे आपने मेंशन किया है. दिस इज मैप वेर यू विल सी पॉइंट बाय बबल्स, बाय बबल्स. ओके, उसे इस तरह से. अब इसका दूसरा भी एक है फील्ड मैप. आई होप कि यहाँ पे दिख जाए. हाँ, ये देखो यहाँ पे, ये है फील्ड मैप. फील्ड मैप मतलब क्या, बेसिकली आप कोई भी एक सिटी स्टेट का नाम दे दो, उसको ऐसे फील्ड है ना, उसका जितना भी बाउंड्रीज है ऐसे फील्ड से उसको ऐसे मेंशन करके मिल जाता है. दैट इज कॉल्ड फील्ड मैप. तो आप जिस किसी की स्टेट सिटी का नाम दोगे, आपको ऐसे फील्ड, उसका एरिया आपको मैप करके मिल जाएगा. एंड द अदर थिंग इज शेप, विच इज दिस. ओके, इसका पर्टिकुलर शेप कैसा है, क्या है, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको शेप करके ऐसा दिया जाता है. सो यू हैव थ्री ऑप्शंस. गेट बैक टू पावर बीआई, यू हैव दिस थ्री ऑप्शंस. ओके, मैप, फील्ड मैप एंड शेप मैप. आप तीनों में से कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसके लिए कुछ इनपुट ध्यान रख लेना. वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज दिस मैप, फर्स्ट यू शुड गो ओवर फाइल, ऑप्शंस में आ जाइएगा. ऑप्शंस में देखिएगा जरूर. यहाँ पे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आने के बाद में देखिएगा, नॉर्मली ये चेक ही होता है. यहाँ पे देखिएगा डेटा एक्सेशन में ये रिकमेंडेड ओनली अलाउ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, या तो जो भी है, एनी अलाउ एनी एक्सटेंशन लोडेड विद वैलिडिटी ऑफ, कर सकते हैं. शो सिक्योरिटी वार्निंग्स वगैरह, हाँ ये कर दीजिएगा. यूज आर्गिस फॉर पावर बीआई, ये जरूर मैप पे कर दीजिएगा. और दूसरा, मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स, यूज मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स, इसको ऑन रखिएगा. नॉर्मली होता है, बट फिर भी अगर नहीं है तो उसे जरूर मार्क करके क्लियर कर दीजिएगा. ओके, उस तरह से रखिएगा. ये ऐसे होता है, इसको चेक कर लीजिएगा. ओके, वंस यू हैव डन, ओके कर दीजिएगा. और वापस यहाँ पे आने के बाद में क्या करना है आपको, जो भी आपने मैप सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट कर दीजिए. अब इसमें इनपुट कौन से देने हैं आपको. अब इस इनपुट को एक्टिवेट करें, इस इनपुट में वर्कआउट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो जो भी सेल्स की वैल्यू है वो सेल्स की वैल्यू तो दे ही दो. अगेन है ना, वो बबल साइज है जो भी आपको वर्कआउट कर लेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा. आपको क्या करना है, बस सिंपली जो भी लेट्स से स्टेट का अपना ये स्टेट है, मैं स्टेट को उठाता हूँ और रख देता हूँ यहाँ पे लोकेशन, इसको यहाँ पे डाल दिया. मेरा हमेशा प्रॉब्लम आता ही है के अलावा, ये ऐसा आपको इश्यू आएगा. ओके, ये बेसिकली, हाँ देखो आ गया. ये बेसिकली कभी कभी क्यों आता है कि अगर नेटवर्क इशू है ना, प्रॉपर मैच नहीं होता है नेटवर्क के थ्रू, स्लो नेटवर्क है तो भी इशू आता है. सो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा से रिफ्रेश वगैरह कर दीजिएगा, अपने आप मार्क हो जाएगा. उसके पहले वो सेटिंग जरूर कर लीजिएगा. तो इस तरह से क्या देखो, आपको स्टेट्स है ना ऐसे मार्क हो जाएंगे, जहां कभी अपने स्टेट्स, ये स्टेट्स क्या है अपने. एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर कि आप जो भी इस लोकेशन में इनपुट दे रहे हो उसके आगे ये ग्लोब का मार्क होना चाहिए. क्या होना चाहिए, ये ग्लोब का मार्क. मतलब क्या है वो, कैटेगराइज होना चाहिए. कैटेगराइज इन व्हाट, अगर सिटी है तो सिटी वाइज, कंट्री है तो कंट्री वाइज. कहां से होता है, स्टेट कॉलम को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे ऊपर में आते हो डेटा कैटेगरी, ये टेक्स्ट रहने दो, टेक्स्ट ही तो है वो, टेक्स्ट तो रहेगा. बट डेटा कैटेगरी में आते हो, स्टेट और प्रोविजन. अब मैं स्टेट की बात करता हूँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन में आऊंगा और स्टेट या प्रोविजन को सेलेक्ट करूंगा. अगर वो कंट्री होता तो कंट्री को सेलेक्ट करता, सिटी होता तो सिटी सेलेक्ट करता. सो यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू कैटेगराइज दैट. ओके, यू हैव टू कैटेगराइज दैट. वंस कैटेगराइज तो क्या होता है, पावर बीआई समझेगा हाँ ये क्या है, आपका ग्लोब है, लोकेशन से मुझे इसको फाइंड आउट करना है और ये पिन पॉइंट करके मुझे मैप के लिए यूज करना है. अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, टेक्स्ट समझेगा. सिर्फ आपको कुछ तो भी इनपुट देना है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, उसके लिए आपने टेक्स्ट रखा है, उसका मैपिंग कहीं नहीं करना है, वो ऐसे समझ आएगा. ओके, इट विल नॉट शो. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ, अब ये तो चलो ठीक है कि मैंने हर जगह पिन पॉइंट तो कर दिया, ऐसे पिन पॉइंट करके डिटेल्स तो मुझे दिख गए. ओके, दैट इज वेयर आई एम इजीली एबल टू मार्क all those states name which I have dragged from here and I have placed over location under location option. You can see each and every states which are in United States are been pinpointed here. But also I need to differentiate it.
because these are only located where the trades are or the sales are being done, isn't it? But I cannot see any differentiate. I cannot understand where, if I have to compare a specific state. So let's say if I have to compare Idaho with Nevada, or let's say if I have to compare California with Orion, so I cannot compare. No? To compare that, I need something, but here only sales is there. To compare that, what I will do, sorry, states are there. So what I will do, I'll drag the sales and I will put it in a bubble size. Okay, it is again stopping me. This just helps happen sometime. Field map aren't enabled for your organization. Okay, if this अगेन ट्राई कीजिएगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी का जो पहली बार स्टार्ट करे, फिर जो भी कर रहे हो ना, आ जाएगा, उसमें वेट करके आ जाएगा। बट फिर भी अगर ये कंसिस्टेंटली अगर ऐसे ही प्रॉब्लम दे रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी है। अगेन आपके पास में अलग अलग मैप्स है, ओके, सिर्फ इस पे रिलाय रहने की जरूरत नहीं है। देयर इज आल्सो वन ऑप्शन ARGIS, ArcGIS, ओके, ये करके ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए। ये भी ऑप्शन है, ये भी बहुत बेटर है। नॉर्मली मैं यही यूज करता हूँ बिकॉज इट इज मच मोर फास्टर फॉर प्रोसेसिंग। Okay, it acts much more faster compared to that map. It is much more easier. और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है एडिट करने। तो दिस इज हाउ इट विल पॉप आउट। इफ आई रिमूव दिस, सिंपल, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, सिर्फ लोकेट करके देगा, कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेट से, वो आपको ऐसे लोकेट करके देता है। ये जो तरीका है, ये क्या है, ये फील्ड मैप का है। कहाँ कहाँ पे कौन से फील्ड का कितना एरिया है, आपको फील्ड की तरह वो आपको शो कर रहा है। शेप बोलो या फील्ड मैप। ये फील्ड मैप को मुझे ऐसे ना दिखाते हुए क्या चाहिए, सेल जो है डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा स्टेट का कितना सेल्स है, ऐसे देखना है मुझे, कंपेयर करना है। तो सेल को उठा के साइज में डाल दो। प्रोसेस हो रहा है, राइट साइड आपको गोल घूमते दिख रहा है। नाउ इट कैन बी सीन ओवर हियर। दिस मींस द साइज ऑफ दिस बबल्स आर maintained or been calculated based on sum of sales which is done by each and every states individually. We can separate, we can compare this. Over here you have on the left side on ArcGIS, this particular visual map, you have options on the left side. Okay, there is this, if you want to enhance your ArcGIS and those details are there, feedback question है, settings कुछ करना है, ऐसे कुछ करना है, तो normally not required, जो default रहने दीजिएगा। इनपुट लेयर होता है, मल्टीपल लेयर्स देने के लिए है, आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। ओके, जैसे पॉपुलेशन है, इनकम है, अगर आपके फील्ड में है, दिया है, तो फिर आपको सर्च करना है कुछ एड्रेस वगैरह, फिर आपको लोकेट करना है, स्पेसिफिकली सेलेक्ट लोकेशन ऑन मैप सेलेक्ट करना है तो। अदरवाइज बेस मैप, ये मैप का चेंज करने के लिए तरीका दिखाने का, शो करने का, डार्क ग्रे है, स्ट्रीट मैप है, लाइट ग्रे, अभी लाइट ग्रे, लेट इट बी। ये जो ऑप्शन है आपके, इसमें लेयर्स, लिस्ट में देखो अभी स्टेट्स का डिटेल्स है। ये कैसे हो रहा है देखो, आपको बता रहा है यहाँ पे, है ना। अदर्स को कुछ इस कलर से डिफाइन किया है, मिनिमम रेंज जो है सेल्स का ये है, और ऊपर जाते जाते इस रेंज में आपको सेल्स का यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है। आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं बेस्ड ऑन सिंबल टाइप, आप सिंबल टाइप चेंज कर सकते हो, लोकेशन के साथ ये भी कर सकते हो, और साइज के साथ ये भी कर सकते हो। विद दैट, साइज ऑफ दिस बबल्स, ओके, आपको ये चेंज करना है, ऐसे क्लासिक इस तरह के ऑप्शन पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। फ्री फायरफ्लाई है, ये भी दिखा सकते हो डिफरेंट तरीके से। बट एनी हाउ, दिस इज बेसिक विच इज रिक्वायर्ड। अब साइज और रेंज 3 से लेके 30 का दिखा है, आपको छोटा करना है, देखो छोटा छोटा होता जाएगा, आपको बड़ा करना है, बड़ा बड़ा होते जाएगा। दिस वे यू कैन लोकेट डिटेल्स, ओके, द साइज ऑफ दिस। और सेटिंग में बाकी है बहुत कुछ ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे जो मैंने भी नहीं यूज किया है नॉर्मली, यूज नहीं, जरूरत नहीं पड़ा कभी, बट अगेन के अपडेट भी आया है। बट अगेन कहीं भी आपको यूज करना है, आप उसे चूज करके यूज कर सकते हो। ओके, दिस आर सम डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, एक्सपेरिमेंट करके देखो। Now, why I'm preferring this option, because if you'll see, ये जो मैप है ना, compared to those 3 options that you have seen over here, compared to this ARGIS, ArcGIS, आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों से ये फास्टर वर्क करता है। दिस मच मोर फास्टर, मच मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल व्हिच इज हैंडी। ओके, तो ये फास्टर की वजह से मैं इसको यूज करता हूँ, प्रेफरेबल। सो अगर किसी भी सिस्टम में अगर ये 3 प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी,
एक्सपेरिमेंट करने के बाद में देख लो, पहले ट्राई कर लो, नहीं होता है सिंपली आ जाइए ArcGIS में, उसको यूज करना स्टार्ट कर दो, सिंपल, नो अदर थिंग्स। तो इस तरह से आप मैप को भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन प्रीरिक्विजिट मैंने जैसे बताया आपको, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस किसी भी फीचर को इनपुट दे रहे हो उसको मेक श्योर कि उसको कैटेगराइज एक पर्टिकुलर स्टेट, रीजन या किसी लोकेशन बेस में होना ही चाहिए, अदरवाइज वहां पे नहीं आएगा। जैसे लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसका चेंज कर देता हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ, अन, है ना, स्टेट से निकाल के इसको अनकैटेगराइज कर देता हूँ। ओके, दो इट इज शोइंग, इट्स गुड। ठीक है, यहाँ पे तो दिखा रहा है, बट बाकी मैप में हो सकता है वो इनपुट भी ना ले। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई देखो, इफ आई रिफ्रेश इट अगेन, सिर्फ लोकेशन दिखा दो, पता नहीं दिखाएगा कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है। स्टेट है ना, स्टेट। पता नहीं, कभी कभी दिखाता है, कभी नहीं दिखाता है। हाँ ठीक है, एनी हाउ आई डोंट यूज दिस, सो आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। तो ArcGIS है, इसको यूज कीजिएगा, विच इज मच मोर रिलायबल एंड बेटर। सेल्स बेस्ड ऑन स्टेट्स, क्या हो गया? कब हो गया? स्टेट सेल्स, सेल्स ऑलरेडी है। ओके, तो इस तरह से आपका वर्क करने लगेगा। नाउ वी हैव आल्सो कॉल्ड गेज। अभी गेज के लिए हम नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आपको इनपुट दिखा सिखाने के लिए, इनपुट देने के लिए आपको पहले मुझे बताना होगा कि डैक्स क्या होता है, क्योंकि हम डैक्स कैलकुलेट करके उसमें इनपुट देना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर मोस्ट ऑफ देम एज वैल्यूज, टारगेट वैल्यू क्या है, इनपुट वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या है, सबसे न्यूमेरिकल डेटा चाहिए। हाँ, हमारे पास में अभी जो वैल्यू है सेल्स का है, बट मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, टारगेट वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट कैसे करना है यूजिंग डैक्स। हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि डैक्स यूज करने के लिए दो चीजें आपको क्रिएट होती है बेसिकली डैक्स में, एक होता है मेजर और दूसरा होता है कॉलम। अब ये है क्या, कैसे क्रिएट करते हैं, अभी तक पता नहीं है, सो आई विल नॉट डाइव दिस एट दिस मोमेंट, हम आएंगे वापस उस पर, तब तक मैं आपको बाकी का डिटेल्स बता देता हूँ। हियर वी हैव अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, जैसे सिर्फ वैल्यू आपको दिखाना है, शोकेस करना है, सिर्फ वैल्यूज, एग्रीगेट फंक्शंस, तो आपको क्या करना है, कार्ड पे क्लिक करना है। कार्ड पे जैसे आप क्लिक करते हो, एक ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई इसमें इनपुट क्या देना है, फील्ड्स। यहाँ पे क्या सिर्फ फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल सेल्स, सेल्स का समराइजेशन करके मिल जाएगा आपको। ओके, नाउ क्या मैं इसके अंदर मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ? नहीं, मल्टीपल आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे सेल से प्रॉफिट ऐड करना है, नहीं कर सकते हैं, एक ही दिखेगा प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट हो गया। क्वांटिटी कीजिए, क्वांटिटी सिर्फ क्वांटिटी आएगा। सो एट वन टाइम ओनली वन particular field can be shown, though it's fields, but only one field is available to showcase over there, only one value, okay, like that। यहाँ पे देखो कैटेगरी जो भी डिटेल्स एक ही आएगा। ओके, हाँ, तो इसी का उन्होंने क्या किया कि जैसे अभी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे सम भी दिखाना है सेल्स का। लेट्स से अभी इसको मैं, ये सम ऑफ क्वांटिटी है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सम ऑफ सेल्स है, सेल्स का दिखाना है। और मुझे फिर से क्या करना है अभी, लेट्स से क्वांटिटी का भी डिटेल्स दिखाना है, तो क्वांटिटी का भी दिखा देते हैं। फिर से मुझे इनपुट करना है, अब लेट्स से मुझे प्रॉफिट का डिटेल दिखाना है, प्रॉफिट भी लेना होगा। मुझे डिस्काउंट कितना दिखाना है, तो मुझे डिस्काउंट भी क्लिक करना होगा, ABCD, डिस्काउंट भी आ गया। तो ऐसे हर बार अलग करना पड़ रहा है ना। बट क्या कोई ऑप्शन है जो मैं एक ही बार में उसे कर सकूं? यस, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में। पावर BI ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, उसको कहते हैं कार्ड न्यू। ओके,
कार्ड न्यू करके फीचर उसको पावर BI ने अपडेट किया है, वो अवेलेबल हमारे पास में है, वो आपको दिखा देता हूँ। लेट्स मैनेज दिस। अब कार्ड न्यू क्या करता है देखो, जहां ये कार्ड था वैसे ही नीचे देखो उसी सेम विजुअल में, देखने में तो दोनों में सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, आप देखोगे दोनों में देखो सेम है ना, 1 2 3 लिखा है, ये भी 1 2 3, बट क्या है, सिर्फ कार्ड न्यू एक नया ऐसे बिजनेस के लिए दिखाई क्योंकि नया ऐड किया गया। सो ये ऐसे नया कार्ड न्यू, इस पे क्लिक कर दोगे, देखो यहाँ पे नया एक कार्ड आ गया। ओके, ओके, इस तरह से आ गया। अब देखो यहाँ पे डेटा कैटेगरी टूल टिप, अब ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सेल्स क्लिक किया, सेल्स की वैल्यू आ गई। मैंने प्रॉफिट क्लिक किया, प्रॉफिट ऐड हो गया। मैंने क्वांटिटी ऐड किया, क्वांटिटी ऐड हो गया। मैंने यहाँ पे से डिस्काउंट ऐड किया, डिस्काउंट मतलब क्या है, जितने भी आप वैल्यूज, ऑब्वियसली जो नंबर है उसी के आपको समराइजेशन वगैरह मिलेगा ना, उससे आप थोड़ी मिलेगा। सो एनी हाउ जितने भी समराइजेशन करने के ऑप्शंस, मतलब बेसिकली जो वैल्यूज जिस पे आप समराइज कर सकते हो न्यूमेरिकल डेटा पे, वो सब यहाँ पे ऐड हो गया। अगेन लेट्स से अगर आपको लगा कि नहीं मुझे कोई कैटेगोरिकल डेटा देना है, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैटेगरी उठाओ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे आपने पुट कर दिया। कैटेगरी में क्या आएगा आपको, अगेन आउटपुट दिखाने के लिए, कैटेगरी में क्या होता है, कोई समराइजेशन तो होगा नहीं, क्या मिलेगा, यस फर्स्ट लास्ट कौन सा दिखाना है, काउंट दिखाओ या काउंट डिस्टिंक्ट दिखाओ, यही तीनों ऑप्शन आपको चूज मिलेंगे। सो यूजिंग ओवर हियर विद द कार्ड ऑफ दिस ऑप्शन डजंट मेक एनी सेंस। अगेन आपको कहीं पे अगर जरूरत करनी पड़े तो कर सकते हैं, बट अगेन इट डजंट हैव एनी रीजन ओवर हियर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन ही आपको विजुअल्स, मैं कितना भी स्ट्रेच करूँ कितना भी ऐसे करूँ, मेरे को तीन ही विजुअल दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, इफ आई हैव टू सी द फोर्थ वन, आई हैव टू ड्रैग दिस लाइन, आई हैव टू ड्रैग दिस लाइन लाइक दिस। यू माइट बी लुकिंग दैट ऐसे क्यों, क्या जरूरत है, जब तीन आया तो चौथा क्यों नहीं आया, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। द रीजन इज दिस कार्ड हैज स्पेसिफाइड फॉर्मेट, हाँ स्पेसिफाइड वैल्यूज दैट शुड बी शोन। लेआउट में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, देखो सिंगल रो, देखो मैं कितना बड़ा करा, देखो सिंगल एक ही रो दिखता है, उसके नीचे तो नहीं आ रहा है। भले मैंने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, डिस्काउंट, नीचे क्यों नहीं गया, नहीं गया क्यों, आपने कहा सिंगल रो ही बनाना है। कल जाके हम इसमें कुछ और ऐड करता, फॉर एग्जाम्पल इट्स पोस्टल कोड ऐड करता, तो भी कहाँ पे होगा, देखो ये आगे ही ऐड होगा, देखो आगे ही ऐड होगा, उसके नीचे नहीं जाता। वाई आई हैव मेंशन्ड कि भाई सिंगल रो ही बना के सिंगल रो में ही दिखाओ, लाइक दिस। ओके, दैट्स वाई सिंगल रो, ये वाला। हाँ, आपको अगर सिंगल रो की जगह मल्टी रो करना है कर सकते हैं, सिंगल रो के जगह कॉलम कर दो, तो क्या होगा, देखो ऐसे कॉलम तो नीचे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना है नहीं भैया मुझे सिंगल रो में रखना है, लेकिन क्या करना है, मुझे उसका जो कार्ड है मैक्स कार्ड शोन वो अगर ज्यादा करना है, ठीक है मैं कर देता हूँ, पांचों के पांचों दिखा, पांच है तो पांच के पांच दिखा दो, ऐसे शोकेस कर दो, दिखा सकते हो। स्टाइल ऑफ अ कार्ड, टेबल, टेबल में दिखाना है टेबल, ऐसे टेबल टेबुलर मतलब ऐसे लाइन करके ना टेबल। अदरवाइज कार्ड्स, कार्ड्स में क्या ऐसे अलग अलग पत्ते जैसे आपको कार्ड सेपरेट सेपरेट दिखाते हैं। कम करना है कम कर सकते हो, बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। उसके जगह कॉलम करना है कॉलम में दिखा सकते हो। सेम गोज फॉर कितना कॉलम दिखाना है, क्या करना है वो आपको चूज करना है। शेप में यहाँ पे ऑप्शन है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर कैसा दिखना चाहिए, टॉप राइट कॉर्नर कैसा, बॉटम, मतलब आपको सर्कुलर बे क्या करना है जैसे ना, ऐसे इस तरह से दिखा। दिखती है ना ये शेप। बॉर्डर, कंटिन्यूस स्क्रॉल, यूनाइटेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पैडिंग, पैडिंग मतलब आपको स्पेस इन दोनों के बीच में आजू बाजू से कितना रखना है, पैडिंग मतलब बेसिकली व्हाइट स्पेस, एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। बैकग्राउंड देना है बैकग्राउंड भी दे सकते हो, अगर बैकग्राउंड में आप जाओगे तो बेसिकली ऑन रखता हूँ मैं। देखो आपको इमेज, अगर बैकग्राउंड इमेज को देना है तो वो भी चूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स ए I'll use
फ्लिप वन, इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखो बैकग्राउंड में आ गया। ओके, रिबन का जो है चार्ट, रिबन का क्या बैकग्राउंड में है, रिबन का सिंबल। इमेज देना दे सकते हैं, नॉर्मल हम फिट कर देते ताकि फिट हो जाए। ट्रांसपेरेंसी दिखाना है, ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं उसका। बोल्ड करना है पूरा, ओपेक करना है, ओपेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर इससे उसको रेड है ना, तो उसको डार्क कर देते हैं। वैसे बैकग्राउंड कलर, हाँ अभी तो इमेज डाल दिया ना, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, उसको भी छोड़ देता है इसलिए एज इट इज। देन आप कॉल आउट वैल्यू करने के लिए स्पेसिफिकली हर एक कॉल आउट वैल्यू का आप चेंज कर सकते हो दिखने के लिए, शोकेस के लिए। जैसे फॉर सम ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे हम, तो सम ऑफ सेल्स में क्या हो रहा है, इट इज विद दिस फॉन्ट डिन, उसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। इसको साइज चेंज करना है, साइज चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना है, इटैलिक अंडरलाइन करना है, जो करना है आप स्पेसिफिकली उसको भी चेंज करके कलर भी चेंज करना है कर सकते हो। मतलब बेसिकली क्या आपके पास में चॉइस होता है, चूजिंग फ्रॉम स्पेसिफिक, लेट्स से चूजिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू, आई कैन एडिट दैट पार्ट आल्सो। सेंटर करना है सेंटर में कर सकते हो, लेफ्ट करना है लेफ्ट में कर दो, डिपेंड्स ऑन योर टोटल रन। देन डिस्प्ले वैल्यू हर एक का दिखा सकते हो अलग, लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे थाउजेंड्स कर देते हैं मिलियन के लिए, वो भी आप मैनेज कर सकते हो। लेबल्स ये ऑन है ताकि आप लेबल पढ़ सको सम ऑफ दैट वैल्यू। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो वो क्या है पता नहीं चलेगा, तो इट्स बेटर वो रहने दीजिएगा। पोजीशन अबव आपको चेंज करना है, बिलो बिलो कर सकते हैं, अबव करना है अबव कर सकते हो, बेस्ड ऑन व्हाट योर रिक्वायर्ड इज। देन रेफरेंस लेबल, सम ऑफ सेल्स, इसको कोई देने की जरूरत नहीं है। इमेज, हाँ स्पेसिफिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल सम ऑफ सेल्स का मैं पकड़ता हूँ। ओके लेट्स से इमेज ऑन करता हूँ, ब्राउज करता हूँ। देखो मैं स्पेसिफिकली सेल्स के लिए सिर्फ अलग देना है दे सकता हूँ, मैं वापस से फिर नीचे आ सकता हूँ यहाँ पे इमेज, लेट्स से सम ऑफ प्रॉफिट का मुझे दिखाना है, इमेज ऑन कर सकता हूँ मैं, स्पेसिफिकली इमेज के लिए भी दिखाना है तो इमेज के लिए प्रॉफिट के लिए भी दिखा सकता हूँ। डैशबोर्ड, तो ऐसे स्पेसिफिकली मैं ना चीजों को मैं हर एक चार्ट के अंदर में हर एक स्पेसिफिक विजुअल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा सकता हूँ। कि हो सकता है ना कई कई जगह पे जैसे आपको दिखाना होगा कि ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करना है, तो पिक्टोरियल थ्रू आप वो भी दिखा सकते हो। तो इंडिविजुअल के लिए भी आप दिखा सकते हो। सो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन ओवर हियर। जैसे ये जो कार्ड है, इस कार्ड का मुझे शेप चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सम ऑफ क्वांटिटी का करता हूँ मैं क्योंकि वो दिख रहा है। मैं नॉर्मल साइज है। ओके मुझे इसे वाइड करना है, वाइड नैरो करना है, कैसे करना है, आई कैन डू दैट ऑल्सो। कैसे दिखाना है, नॉर्मल है जो कोई भी है, नैरो है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे स्लाइडिंग बेसिस में। यहाँ पे बैकग्राउंड तो चलो पता है, बॉर्डर भी पता है, शो शैडो जरूरत नहीं दिखाने के लिए, ग्लो नॉट रिक्वायर्ड। ओके तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। अगेन हर एक ऑप्शन यूज होता ही है, ऐसा कोई रिक्वायर नहीं है, बट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आपको क्या लगता है आपके हिसाब से आप उसे चूज करो, उसमें एडिट करो, या लॉट्स ऑफ इट्स ए टेस्ट पैरामीटर हो गया, यू कैन चूज हाउ टू यूज, कैसे करना है, इट विल डिपेंड्स ऑन यू। ओके सो यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर हियर टू प्ले ऑन विथ। इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हो। सेट दैट, ऐसे कर देता हूँ। सेट दैट, अब इसको छोटा कर देते हैं ना। अब आते हैं नेक्स्ट, मल्टी रो, केपीआई और साइलेंस स्लाइसर। केपीआई भी अगेन आपको डैक्स फंक्शन लगेगा। मैं पहले आपको मल्टी रो बता देता हूँ क्या है, फिर टेबल बता देता हूँ। सॉरी मल्टी रो सेलेक्ट करना था, देन टेबल, एंड ये तीनों को मैं एक ही जगह पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ये कर देते हैं यहाँ पे, ये कर देते हैं यहाँ पे, और तीसरा अपना मैट्रिक्स। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली दिस डिफरेंसेस आर देयर। पहले मैं मल्टी रो बताता हूँ। मल्टी रो मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी। क्या हुआ, सी व्हेन आई सेलेक्टेड, when I first selected the sales value only, it was this 2 lakh 20 22 lakh 97,200, that was the value for that particular sales, sum of sales parameter.
व्हेन आई चेक्ड ओवर कैटेगरी रो वाइज, क्या हुआ, ब्रेक रो वाइज हुआ है ना। टेक्नोलॉजी का एक रो, फर्नीचर का एक रो और ऑफिस का नया रो ऐड हो गया, मल्टी रो, नाम जैसा दिया वैसे मल्टी रो। अगेन मैं इसको इसी डिटेल्स को और ब्रेक करना चाहता हूँ, किसमें ब्रेक करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं करना चाहता हूँ इसे रीजन वाइज। तो देखो रीजन वाइज हो गया। अब रीजन वाइज कैसे हुआ और अंडरस्टैंड कीजिए। टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, उसको क्या किया, ईस्ट रीजन वाइज ब्रेक किया। फिर फर्नीचर, उससे किसे किया, वेस्ट, क्योंकि कैटेगरी है ना, कैटेगरी में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी फर्नीचर, ओके, इस तरह से ब्रेक हो रहा है। ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट ईस्ट करके ऐसे ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी का ईस्ट रीजन, फर्नीचर का वेस्ट रीजन, टेक्नोलॉजी का वेस्ट रीजन, ऑफिस सप्लाईज का वेस्ट रीजन, फर्नीचर का ऐसे क्या है, आगे ब्रेक होता जा रहा है, मल्टी रोज क्रिएट करते जा रहा है, मल्टीपल रोज। तो जितना आप यहाँ पे बाइफरकेट करते जाओगे उतना वो वहां पे मल्टीप्लिकेट करते जाएगा। नाउ दैट अरेंजमेंट ओवर हियर यू विल सी, सॉर्ट कैसे हो रहा है, देखो बाय सम ऑफ सेल्स हो रहा है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अगेन क्वेश्चन ये होगा, मैं अंडरस्टैंडिंग करने में डिफिकल्ट है ना, मैं सम ऑफ सेल्स को उठा के लास्ट में लेता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं। लेट्स से इफ आई पुट एट द लास्ट ओवर हियर, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। सी, सबसे ज्यादा जो टोटल था उसमें से 16 16 लाख, हाँ, 1,63,000, 2,08,000, 1,17,252, एक सेकेंड, सॉर्टेड बाय, अच्छा कैटेगरी हो गया, हाँ, हियर इट इज नाउ सॉर्टेड बाय कैटेगरी, ओके, कैटेगरी वाइज। सी, एफ सबसे पहले आया, फिर ऑफिस सप्लाईज ए बी सी डी करके ना ऑफिस, उसका यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है। आपको चेंज करना है सॉर्ट बाय सम ऑफ सेल्स, उस तरह से भी कर सकते हो जो पहले आ रहा था, दैट इज आल्सो ओवर देयर। आपको इसको सॉर्ट करना है किसी और फॉर्मेट से, रीजन से भी कर सकते हैं। सो इट्स सॉर्टिंग बेस, ओके, सो इट्स नॉट एनी इशू ओवर हियर। ये आपको जो भी दिख रहा है आप सॉर्टिंग करके उसमें चेंजेस कर सकते हो, बट द थिंग इज whenever you are going to use multi रो, आपको मल्टीपल रो, जैसे जैसे आप उसमें बाइफरकेशन ऐड करते जाओगे आपको क्या है, रो ऐड होते जाएगा। दैट इज द लॉजिक हो गया। फॉर द टेबल, टेबल क्या होगा, मैं सेल सेलेक्ट करता हूं और कैटेगरी को दिखाता हूं, आपको ऐसा टेबल में दिख जाएगा लाइक दिस। अगेन द थिंग इज सेम, सेल्स की वैल्यू है, मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, सेल्स का जो वैल्यू है, और उसको अपने कैटेगरी को, इस तीन कैटेगरी को सेल से आपने ब्रेक कर दिया अलग अलग रीजन में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट गोज विद दैट। आपको और ब्रेक करना है रीजन वाइज, आप उसको ऐड कर दो यहाँ पे, कहाँ पे करना है, कैटेगरी के ऊपर करना है, कैटेगरी के बीच में करना है, सम ऑफ सेल के लास्ट में करना है, डिपेंड्स ऑन यू। सो मैं कैटेगरी के बाद में करता हूँ, तो क्या होगा, इससे टेबलर फॉर्मेट आपको दिख रहा है। अगेन ये अरेंजमेंट कैसा है चेक करना है आपको, यहाँ से करना है क्लिक, यहाँ पे सॉर्ट बाय करना है, किसके बेसिस में, अभी तक तो किसी नहीं है, अभी तक कैसे देखो, हाँ ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में FOT, सॉर्ट बाय कैटेगरी है फर्स्ट, रीजन करना है सर, कैसे करना है आपको वो भी सॉर्ट कर सकते हो। ये किस में दिखेगा आपको, टैबलर फॉर्मेट में, टेबल के बेसिस में दिखेगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो दोनों में डिफरेंस देखोगे आप, इसको मैं थोड़ा विजुअली बढ़ा देता हूँ, अपीयरेंस इसका, फॉर्मेट में साइज बढ़ा देते हैं, 18 कर देता हूँ, दिखेगा, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। 18 की जगह 14, 14 भी ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो आपको टेबल में हर समय ये टोटल मिलेगा, इसी के रेफरेंस से आगे क्या ब्रेक हो रहा है आपको कैलकुलेट करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, हर एक चीज का, फर्नीचर का ब्रेक होते ही कैटेगरी में रीजन में ऐसे करके ब्रेक, तो ये सम हमेशा वैरी होता रहेगा, वो रेफरेंस नहीं मिलेगा कि टोटल कितना है, सब टोटल क्या है, करेक्ट, वो चीजें नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, सीधे सीधे रो स्टार्ट हो जाता है बनना, वेरएज यहाँ पे आपको टोटल हमेशा रेफरेंस के लिए मिलता है, आपको पता चलता है कहाँ पे कैसा है। इट्स बिट ऑर्गेनाइज्ड, ये अनऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं। अगेन इसी टेबल को आपको फर्दर और इसको और अच्छे से डिटेल्स को जानना है, तो हम मैट्रिक्स में जाते हैं। एडवांस वर्जन ऑफ टेबल इज नथिंग बट मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या होता है देखो, मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इफ आई सेलेक्ट सेल्स एंड इफ आई ऐड कंट्री, सॉरी कैटेगरी, तो आपको डिटेल्स, ये तो सेम है, चलो इतना, ये तो कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, से 14 इसको भी कर देता हूँ, है ना, डिफरेंस ये तो सेम है, कुछ इतना डिटेल्स नहीं। अब बात कब होती है, जब मैं ऐड करता हूँ लेट्स से रीजन, यहाँ पे ये काम करता है, देखो व्हेन वी से मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स नॉट ओनली टोटल द ओवरऑल सेल्स बट ऑल्सो वेस्ट के बेसिस में तीनों के तीनों रीजन को आपको देखोगे तो उसका सब टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। वही अगर आप फर्नीचर को ऐसे देखोगे ऑन राइट साइड ऐसे जाते जाते हो कि सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट, इंडिविजुअल वेस्ट का भी डिटेल मिलेगा और ओवरऑल पूरे के पूरे रीजन्स का भी टोटल आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आप कभी भी मैट्रिक्स के बेसिस में देखोगे तो आपको एक्स वाई ओके ये दोनों के दोनों चीजों को कैलकुलेट करता है, वेरएस वहां पे क्या था आइदर वाई और आइदर एक्स एक रेफरेंस रहता है। मतलब अगर सेल्स की वैल्यू है टेबल तो टेबल क्या करता है आइदर आई विल गो विद द एक्स और आई विल गो विद द वाई ओनली, एक ही बेसिस में, इजंट इट। मतलब टेबल में क्या होता है एक वैल्यू है 10,000, लेट्स से 10,000 वैल्यू, 10,000 को मैं क्या करता हूँ ब्रेक करता हूँ 5,000 2,000 7,000 एंड 7 और 3 5 8, अरे ज्यादा हो गया, ओके ज्यादा हो गया, ओके 5 2 2 1 इस तरह से ब्रेक करता हूँ। अब अगेन मुझे 5 को और ब्रेक करना है सेल्स को जो हुआ है तो इसी के अंदर में क्या होगा यहाँ पे 3 2 1 इस तरह से होगा, इस 2 का होगा 1 1, इसका भी होगा 1 1। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ब्रेक करते समय इसका रेफरेंस इस वैल्यू का रेफरेंस लेके यहाँ पे ब्रेक करते जा रहा हूँ। बट बाय डिफॉल्ट जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ब्रेक करके ही आपको मिल जाता है। कैसे देखो फर्नीचर का कितना सेल्स है, ये किसका है सेंट्रल का है, ये टोटल सेंट्रल का सेल्स है फर्नीचर का सेंटर में, फर्नीचर का ईस्ट में ये मिल गया फर्नीचर का। अच्छा फिर सबका टोटल देखोगे तो फर्नीचर का कितना टोटल है ओवरऑल रीजन्स में ये टोटल है। अच्छा ये टोटल टोटल कितना है पूरा का पूरा सेल्स ये है। मतलब मेरे पास में मल्टीपल व्यूज होते हैं एक ही टाइम में, ठीक है लाइक दैट। आप देख सकते हो देखो रोज भी है कॉलम्स भी है वैल्यूज भी है। नॉर्मली क्या होता है ये दोनों चीजें होती है इस तरह से, आइदर रो और आइदर कॉलम्स, दोनों में से कोई एक चीज होती है। आपने देखा होगा लास्ट विजुअल से आपने देखो यहाँ पे देखा हमने क्या किया ये वैल्यू है क्या किया इसको ब्रेक कर दिया, कैसे किया रो वाइज, कैसे किया रो वाइज बेस्ड ऑन कॉलम दैट यू हैव गिवन रो वाइज ऐड हो रहा है ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है रो और कॉलम दोनों बेसिस में ब्रेक होता है एक साथ। सो अगेन मैट्रिक्स इज एडवांस वर्जन और लेट्स से मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टेबल, अ हायर वर्जन बेसिक, ओके ये ध्यान रखिएगा। Okay, said that then we have also, now the data can be generated or it can also be connected with MySQL, with Python and R, some of the options also. आज मैं आपको क्या करता हूँ MySQL के साथ में कैसे कनेक्ट करना है आपको वो दिखाता हूँ। ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे टाइटैनिक का डेटा लेना है, टाइटैनिक का डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ से करना है MySQL के डेटाबेस में से करना है। तो पावर बीआई कैसे करता है, हाउ इट इज अप्लाइड और लेट्स हाउ इट इज पॉसिबल विद पावर फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट मोर डेटा में से ध्यान रखिएगा, गेट मोर डेटा में से मोर पे आ जाइए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं माई सिक्वल करके, यू कैन सी इट इज ऑलरेडी ओवर देयर। बट अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग ओवर हियर यू कैन सर्च एट हियर ऑल्सो, सर्च बॉक्स है वहां पे उस पर क्लिक कीजिए, माय करके लिख दीजिए, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, माय कर दीजिए, माय डेटाबेस सिक्वल आगे इस पे सेलेक्ट कर दीजिए, इसको कर दीजिए कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद में ये डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको कनेक्टर का एक एरर आएगा। ओके कनेक्टर का अपडेट करते हैं, फिर कनेक्टर वन और मोर एडिशनल कनेक्टर इज रिक्वायर्ड है, फिर वन और मोर कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू ऐड करके आपको कनेक्टर का एक मैसेज आएगा। कुछ नहीं करना है वहां पे, ओके पे क्लिक नहीं करना है, ओके पे नहीं, वहां पे लर्न मोर करके ऑप्शन होता है, उस लर्न मोर पे क्लिक कीजिए। लर्न मोर पे यहाँ पे ऐसे लर्न मोर करके ऑप्शन होता है, ओके उस लर्न मोर पे क्लिक कीजिएगा, ऐसा ऑप्शन है उस पे, तो आपको लेके जाता है कहाँ पे माई सिक्वल के कनेक्टर के साइड पे लेके जाएगा। वो कहाँ पे लेके जाता है आपको माई सिक्वल का कनेक्टर, लेट मी शो यू वेयर इट इज। माई एसक्यूएल कनेक्टर, माई एसक्यूएल नेट कनेक्टर, ओके ये माई एसक्यूएल नेट कनेक्टर है, इस पे आते यहाँ पे आपको लेके आएगा वो। आपको करना क्या है, आपको इसको करना है डाउनलोड और करना है इंस्टॉल और कुछ नहीं करना है। अब होता क्या है पीपल हु लेट्स से इंस्टॉल्ड पावर बीआई रिसेंटली अभी है, अभी अभी सब अपने काम किया है, माइसिक्वल भी नया किया है, तो ठीक है कनेक्टर हो जाएगा और नया सिस्टम है सब ठीक है। बट अगर
वर्जन वाइज में अगर आपका सिस्टम पुराना है, माइस्क्ल पुराना है, पावर बीआई अभी का नया है, जब डिफरेंस में होता है वेरी वर्जन इश्यूज में, जब किसी का अपडेट होगा किसी का नहीं होगा, ऐसे प्रॉब्लम से, तो आपको करना क्या है, आपको आर्काइव में जाना है। कहाँ जाना है? दूसरा ऑप्शन, यहाँ से आर्काइव में जाना है, आर्काइव में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे अलग अलग वर्जन है, बहुत सारे अलग वर्जन है। ओके, नाउ अगर आपका जो प्रोसेस हम करने वाले हैं, कनेक्टर ऐड करने के बाद में, डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में, जब आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्ट, माइस्क्ल के साथ में कनेक्ट करोगे, कहाँ पे? पावर बीआई में, यहाँ पे सर्वर का नाम और यहाँ पे डेटाबेस देने के बाद, फिर भी ये डायलॉग तभी आपके पास में आता है जब आपका कनेक्टर प्रॉपरली इंस्टॉल होके कनेक्ट होता है। ओके, माइस्क्ल से और पावर बीआई से कनेक्ट होता है। तो अगर नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो 9.2 जो वर्जन है, इसका पीछे वाला पहले वाला वर्जन को आपको यहाँ से 9.1 ऐसे मल्टीपल ना, आपको एक एक करके ऐड करके आपको इंस्टॉल करके वो चेक करते रहने होगा ना। ऊपर से नीचे मत आइएगा। जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, देयर आर ऑप्शंस व्हिच इज 9.20 से नीचे नीचे वर्जन है। डोंट गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डोंट गो इन दिस डायरेक्शन। रैंडमली ऊपर से फिफ्थ कोई भी सिलेक्ट कर लो, फिफ्थ कनेक्टर सेलेक्ट कर लो, उसको डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो वहां से ऊपर बढ़ो। उससे होगा क्या? आपको बार बार अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ओके, आपको क्या है, आपका कनेक्टर बार बार अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अपडेट करने में आपको आसानी होगी। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर आपका फिफ्थ वर्जन का है, नॉट फिफ्थ वर्जन, लेट से फर्स्ट वर्जन का है, तो क्या बोलेगा वो? अरे फिफ्थ वर्जन आप, सेकेंड वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हो, क्या आप वो फर्स्ट वर्जन को अपडेट करना चाहते हो? हाँ करना चाहते हो, तो इजियर होता है ना। बट अगर यही आप उल्टा करोगे, आप क्या करोगे? सेकेंड से वन में जाओगे, ओके, सॉरी, वन से सेकेंड में जाओगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वन से सेकेंड में जाओगे तो क्या होगा? आपको पूछेगा कि आप फर्स्ट जो ओल्डर आपका ओल्डर वर्जन है, आप उसको अपडेट कर रहे हो नए वर्जन से, विच इज ओके, आप कर सकते हो, वो आसान है अपडेट करना। बट अगर आप सेकेंड से वर्जन को नीचे तरफ लेके आओगे तो प्रॉब्लम क्या होता है? अनटिल अनलेस यू डिलीट द हायर वर्जन, आपका पहले वाला वर्जन इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको हर बार अनइंस्टॉल इंस्टॉल करते बैठना पड़ेगा। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सो डोंट डू दैट। अगर वर्क नहीं करता है वन शॉट में तो फिफ्थ से ऊपर तरफ बढ़ते जाना है, ताकि सिर्फ अपडेट करते रहोगे, हो जाएगा। ओके, एरर होता है कभी कभी। तो ऐसे आने के बाद में क्या है, आपको क्या करना है? यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स लाने के लिए आपको कनेक्टर ऐड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में पावर बीआई को एक बार क्लोज करके रीस्टार्ट जरूर कीजिएगा। रिफ्रेश एक बार उसको, थोड़ा सिस्टम को रिफ्रेश होने दीजिए, जो भी आपने लोड किया उसे अंडरस्टैंड करने दीजिए, और फिर बाद में यहाँ पे वापस से माइस्क्ल में आके आपको वो ऐड करना है। वंस डन विद दैट, यहाँ पे क्या करना है? लोकल सर्वर, आपको तो पता ही है लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट ये कर दीजिए। लोकल होस्ट डालने के बाद में क्या है? डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस है आपको सिलेक्ट करना है? आर्बर करके है, बताइए आपको आर्बर है हमारे डेटा सेट में, इसको कर दो ओके। वेट कीजिएगा, सब सही है तो देखो आपको नेविगेटर पे लेके आ जाएगा। यस, सिंस यू हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज करेक्ट, आपका डेटाबेस का नाम भी सही है, आपका लोकल होस्ट भी ओके है, तो क्या हुआ? आर्बर के अंदर में देखोगे एम्प्लॉय डिटेल्स, बॉस्टन, डिपार्टमेंट, एजुकेशन, एजुकेशन एम, इतने सारे डिटेल्स है, टाइटैनिक है, चलो ये भी है। तो ये डिटेल्स आपको चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? आई कैन गो ओवर हियर, आई कैन सेलेक्ट और लोड कर दूंगा। बट अगेन, क्या मुझे ये सब इंफॉर्मेशन देखने की जरूरत है? क्या इतना लोड देने की जरूरत है क्या मुझे मेरे सिस्टम को कनेक्शन के लिए? नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं? गेट डेटा मोर फास्ट वर्किंग के लिए माइस्क्ल डेटाबेस में आना है, कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे क्या बता देना है? यहाँ पे लोकल होस्ट डेटाबेस को देने के बजाय अगेन आर्बर तो देना है यहाँ पे, लेकिन एडवांस ऑप्शन भी आपके यहाँ पे। ओके, सो ये आर्बर में है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे कमांड क्या लिखता हूँ? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटैनिक। ओके, नाउ ओके कर देता हूँ। सी, the time which it has taken to fetch the data, it is much more faster compared to that. Why? Because database में जाके सबके सब डेटा को लेके आओ, फिर यहाँ पे करो, फिर it is huge time taken. Okay, the time has been taken a bit huge, उतना नहीं चाहिए हमें।
ये प्रोसेस है, ये फास्टर होता है, बेटर है। और जब मैं ऐसा कोड आपका क्वेरी लिख रहा हूँ तो मेरे लिए आसान भी है ना। क्वेरी लिखने से एडवांटेज क्या होगा, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मुझे जितने अब यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो, आई हैव सर्वाइव्ड, आई हैव नॉन सर्वाइव्ड एंड सर्वाइव्ड, बोथ डिटेल्स। इफ आई हैव टू एनालिसिस ओनली पीपल हु हैव सर्वाइव्ड, तो क्या, तो मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डू दैट, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल करता हूँ मैं इसे, MySQL में आता हूँ और MySQL database, yes please connect here, localhost, localhost, advanced, select star from Titanic where survived, उसका कॉलम का नाम सही है कि नहीं, ठीक है, सर्वाइव इज इक्वल टू 1, ये हो गया। चेक करते हैं, ये लिखा रहेगा ना अपना AR बैठेगा, ओके, इसको ले लेते हैं। unknown survive, edit, ABIBED, VED, यस, देखो सर्वाइव में सिर्फ और सिर्फ अभी 1 वाला है, मतलब फिल्टर भी कर सकता हूं मैं। The ultimate thing is what I want to show here is that if you want, or let's say if you know MySQL, so you can write query over here, you can group by, you can do small things over here. आप यहाँ पे काम करके उसे कर सकते हो, टेबल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सो राइटिंग क्वेरी इज ऑल्सो वेरी इजी ओवर हियर। यहाँ पे आना है, MySQL पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, लोकल होस्ट, हार्बर, एडवांस ऑप्शन, टाइटैनिक, अगेन सभी चाहिए, चल से ओके। यहाँ पे कर देता हूँ लोड, लोड करते डेटा यहाँ पे आ गया, वेट कीजिए थोड़ा, लोड टाइम लेगा। आ गया आपका डेटा, क्वेरी 1, इसको मैं टाइटैनिक कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। कहाँ से आया है, लेट्स से MySQL से है, फाइन। इस तरह से क्या आपका डेटा यहाँ पे MySQL से इजीली कनेक्ट करके डेटा आप आराम से फेच कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू, यू डोंट हैव टू लेट्स से गो थ्रू MySQL, यू हैव टू गेट थ्रू दैट डेटा, उसको सेव करो CSV में, CSV में सेव करने के बाद में फिर यहाँ पे उसको लोड करो, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू सच लॉन्ग वेज। यहाँ पे उन्होंने सब क्या रखा है, कनेक्शन करके दे रखा है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे से उसके बीच में कनेक्शन बनाना है सॉफ्टवेयर के बेसिस में, वो सब प्रॉपर रखिए, अपडेटेड रखिए। आप कभी भी जाएंगे तो आपको सिर्फ इनपुट क्या देना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देके आप क्रेडेंशियल्स दे दीजिए, आपका डिटेल यहाँ पे ओके हो जाएगा। वंस इन शॉर्ट, एक ही बार में करें, खत्म। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, so sir. today we will stop over here as we have bought the Titanic dataset also। आप भी ट्राई कीजिए, बाकी विजुअल्स जो दिए है उसको भी अप्लाई कीजिए, कल आएंगे और इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू गाइस, Thank you, sir. गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir.